Hello dear students, today I am going to continue chapter number 8 of the Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, that is Sources of Business Finance, session number 8. In last different 7 sessions, I started with information related to these sources of business finance. Also, we discussed that different type of the owners fund, that is owners capital, starting with the first one, equity shares with its characteristics, then preference share with its characteristics, right? Also, I gave the types of both equity and preference share. And the last topic which was discussed in our session, that was the difference between the equity and the preference share. Only 7 points were there. You can add some other points. I gave that information regarding that extra points too. So let's start today. The owners fund number 3, that is the last number of the owners capital. It is called retained profit or flowing back of profit. Whatever the profit throughout the year is there, right? Out of that profit, some of the part is kept aside as reserve, and that is called flowing back of profit. जो भी प्रॉफिट पूरे साल में हुआ है, उसमें से थोड़ा परसेंटेज उस प्रॉफिट साइड में निकाल के उसे रखते हैं एज ए रिजर्व. जो रिजर्व में रखते हैं उसे बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और रिटेन प्रॉफिट. फ्लोइंग बैक आपको मालूम है, जो भी है उसको वापस अपने बिजनेस में डालना, राइट? फ्लोइंग बैक, उसको बैक करना है प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस में. कैसे, क्यों, दैट इज द पर्टिकुलर एडवांटेजेस, और उसको क्यों ज़्यादा नहीं करना चाहिए उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं. लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ दिस फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. During sound financial position, that means you are at the top, you are at the peak in the business, and your financial condition is good, you are sound financially, company earns more profit. That means you have more and more type of the opportunities to earn more and more profit. You will earn more profits. That is the reason you will get more and more capital. So at that time, when your financial position at highest, it's at peak, or we can say it is good, or financially you are sound or good, or your credibility is increased because of your financial position. आपकी पोजीशन मार्केट में बहुत अच्छी है. The reason is that because you are getting more and more profit, because you have that sound financial position, right? So उससे क्या benefit होगा? At that time, instead of distributing all profits in the form of dividend, company keeps some part of profit in the form of reserves in business. So when your financial position is sound, is good in the market, don't distribute all the profit as a part of your dividend. इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर को फिक्स देना है, उसको साइड में कर देते हैं. लेकिन इक्विटी शेयर को पूरा जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है वो डिविडेंड के तौर पर मत दो. कीप असाइड समथिंग एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व. तो यहाँ पर यही है, instead of distributing all the profits, when you are in a sound position, you are in a good position, right? Keeps aside some of the part of the profit in the term of reserves. रिजर्व के तौर पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट साइड में करिए. ये रिजर्व क्या है? आपके पास 100 रुपये पड़े हैं, आपने 20 रुपये निकाल के, हर रोज आपको 100 रुपये पॉकेट मनी मिलते हैं, उसमें से आप 20 रुपये निकाल के साइड में रखते हो और 80 रुपये खर्च करते हो. आपको मालूम है आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है, आपको मालूम है आपको पैसे मिलने ही वाले हैं, तो आप 20 रुपये साइड में रखते हो और हर रोज 100 का नोट आपको पॉकेट मनी में मिलता है. हर रोज आप 80 रुपये खर्च करते हो, 70 रुपये खर्च करते हो, वॉटेवर. लेकिन जो 20 रुपये आप साइड में करते हो वो क्या है? दैट इज नथिंग, दैट्स वन टाइप ऑफ द रिजर्व. हम उसको सेविंग बोलते हैं. हम उसको फ्यूचर अनसर्टेनिटीज में यूज करने के लिए कुछ ऐसा नाम देंगे, शायद वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग व्हेन वी आर इन नॉट इन गुड पोजीशन. शायद हम अच्छी पोजीशन में नहीं तो बिजनेस में निकाल के उसमें से यूज करेंगे. तो ये रिजर्व जो है आपका अकाउंटेंसी में आएगा, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 में. अंडर दैट यू विल समथिंग लर्न समथिंग न्यू दैट दे एग्जिस्टिंग. बट उसमें आपको मालूम पड़ेगा रिजर्व्स क्या है. जनरल रिजर्व्स आएगा, कैपिटल रिजर्व्स आएगा, दैट आर कॉमन. कई अलग अलग टाइप के रिजर्व्स होंगे, लेकिन जनरल रिजर्व दैट्स द कॉमन. तो रिजर्व्स में थोड़ा बहुत रुपया पैसा जो प्रॉफिट है वो रखेंगे, राइट? दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. जनरल रिजर्व कुछ नहीं है, रिजर्व कुछ नहीं है, दैट्स द पार्ट ऑफ प्रॉफिट. ओके, सो फॉर फ्यूचर पेमेंट्स ऑफ बिजनेस लायबिलिटीज, दिस रिटेन अर्निंग्स जो आपने रिजर्व के तौर पर साइड पर रखा है, वो रिटेन अर्निंग्स आर रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस. उसको फिर से बिजनेस में डाल दो, रीइन्वेस्ट इन द बिजनेस. इट इज कॉल्ड फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, और उसका दूसरा नाम है रिटेन प्रॉफिट.
So keep in mind, whatever the profit aside as a part of the reserves, right, in the financial or in the good financial position, right, you can use that one for the future payments of the liabilities. Liabilities will be there because you are doing a business, the business will run, payments will be there, you are earning, your profit is maybe not high, it is decreasing. So at that time, right, you have to pay that liabilities. So this return earnings, whatever the reserve part is there, you can utilize that and reinvest that reinvest that money in the business, and it is called flowing back of profit. So simple thing is that the part of the profit which is kept aside and keeps as a reserve for the future, that is nothing, that is the flowing back of profit. सिंपल है, आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से थोड़ा बहुत पार्ट निकाल कर साइड में रख दो, उसे रिजर्व बोलते हैं, और वही जो रिजर्व है वो फ्यूचर में लाइबिलिटीज पे करने के लिए यूज होगा, वही है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। रीइन्वेस्ट कर दो उसको, लाइबिलिटीज पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है उसमें से पे करो, अगर पे नहीं करते हो लाइबिलिटीज तो जो भी रिटर्न अर्निंग्स है उसको रीइन्वेस्ट करो, तो रीइन्वेस्ट करोगे उसमें से पे तो करना ही है ना, दैट इज द थिंग। सो व्हाटएवर द रीइन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, दैट इज द फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से भी रीइन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज द रीइन्वेस्टमेंट फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, दैट्स द पर्टिकुलर मीनिंग, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। नाउ वी विल व्हाट्स द एडवांटेजेस ऑफ दिस रिटेन प्रॉफिट और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, यूज्ड इन और यूजफुल इन टाइम्स ऑफ रिसेशन। जब मंदी चल रही होती है, डिप्रेशन होता है, रिसेशन होता है, ट्रेड साइकिल में आप सीख चुके हो, 4 अलग अलग ट्रेड साइकिल के जो भी हमारी है इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2, उसके हिसाब से आपको मालूम है डिप्रेशन, रिसेशन, राइट, क्या है। तो रिसेशन में ये पैसा यूज होगा क्योंकि आपके पास पैसा नहीं हो, मार्केट में मंदी है, माल बिकता नहीं है, तो यू कैन यूटिलाइज दैट मनी, दैट रिजर्व्स, दैट इज द फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नेगेटिव चेंजेस इन द मार्केट एज वेल एज टू फेस डिफिकल्टीज arising in times of recession or depression. The retained profit is very useful. So why it is useful? Simple thing is that your selling in the market is less than whatever it was in the past. So at that time you will not earn more and more output. You will not able to earn more profit. You can utilize that. So यहाँ लिखा हुआ इसलिए negative changes in the market as well as to face difficulties arising in times of the depression or recession. तो sometimes the changes are there in the market like pandemic, अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से पैसा नहीं है मार्केट में, कुछ बिकता ही नहीं है, तो how you will earn, तो you can utilize your retail profit। अगर आपने लिया हुआ है तो, रखा हुआ है तो, अगर आपने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर डिविडेंड तो कुछ नहीं बचा होगा, तो जनरल रिजर्व नहीं होगा आपके पास, तो हाउ विल यूज दैट, राइट। तो डिफिकल्टीज के टाइम में यूज आए ऐसा पैसा रखो, जो हमारा 20-20 रुपया जो हमने बचा के रखा था वो, राइट, मैंने हमारे एग्जाम्पल में अभी बोला। सो दैट इज द यूजफुल इन टाइम्स ऑफ रिसेशन। सेकंड, यूजफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। समटाइम्स इट इज वेरी यूजफुल, फ्यूचर इज अनसर्टेन, यू नो, तो फॉर द फ्यूचर प्लान्स you can utilize this type of the reserves, this type of the retained earnings. How? Let's see. For implementation of future plans, आपको प्रैक्टिस में कुछ रखना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट यू हैव टू पुट दैट इनटू प्रैक्टिस। यहाँ कुछ नहीं चलेगा, उसको पेपर पे लाना पड़ेगा। सो व्हेन यू वांट टू पुट समथिंग ऑन द पेपर, समथिंग ऑन द प्रैक्टिस, और यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग, राइट, फॉर द फ्यूचर। सो फ्यूचर प्लान आते हैं, लाइक कौन सा फ्यूचर प्लान यहाँ चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, आपने सोच के रखा है फ्यूचर में ये करना है, दैट इज द बिजनेस यूनिट। ऑल्सो एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन, राइट, ये जमाना है, कुछ ना कुछ नया देना पड़ता है, छोटी शॉप में बड़ी करो, एक्सपांशन इज रिक्वायर्ड। ऑल्सो इट शुड बी मॉडर्नाइजेशन, एसी लगवाओ, राइट, चेंज करो डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। ये तो सिर्फ एक शॉप की बात कर रहा हूँ, राइट। कंपनीज में भी कुछ मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा, राइट। आपके जो एम्प्लॉइज है ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ नया करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपांशन करना पड़ेगा। सो मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन, दैट्स द पार्ट ऑफ द नाउडेज इन द कंपनीज। तो उसके लिए पैसे चाहिए, आपने सोच के रखा ये करूँगा। एक सिंपल थिंग है, व्हेन यू विल अर्न समथिंग यू विल स्पेंड दैट मनी। तो जितना भी आप कमाते हो उसको स्पेंड करने का मैं सोच के ही रखा है। अभी से आपके दिमाग में, अभी तो आप ऐसा कुछ अर्न कर नहीं रहे हो, फिर भी आपके दिमाग में चला है कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी। सो विल बी देयर इन फ्यूचर, तो अभी से सोच के रखा है, दैट इज इंडिविजुअल लाइफ। तो बिजनेस में देखो कितना एडवांस करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू एक्सपांड आवर बिजनेस। तो मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन, ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज
नीड टू रेज क्या है, उसके लिए पैसे चाहिए, कहाँ से लाओगे? हाँ चलो इक्विटी शेयर इश्यू कर दिया चलेगा, लेकिन बिजनेस भी चलाना है, बिजनेस में भी उसको इन्वेस्ट करना है, प्रेफरेंस है उसको डिविडेंड भी देना है फिक्स रेट पर, डिबेंचर्स इश्यू किए इसके बाद आएगा हमारा जो गवर्नमेंट फंड उसमें देखेगा, डिबेंचर जो इश्यू किए उसको भी इंटरेस्ट देना है, तो पैसा तो सबको देना ही है ना। अगर डिबेंचर्स वाले को परसेंटेज देना है, प्रेफरेंस है को डिविडेंड फिक्स रेट के देना है, इसके लिए भी पैसे चाहिए। तो जब आपकी इनकम ज़्यादा हो, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, तो थोड़ा पार्ट निकाल लें। That is nothing to raise capital for the company does not have to depend on external sources। तो इन सब के लिए जो पैसा रेज करना है, वो पैसा रेज करने के लिए किसी और के ऊपर, एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है। तो इसके बाद हम देखेंगे ओनर्स फंड खत्म होगा, उसके बाद जो बॉरोड कैपिटल आएगा बॉरोड फंड, उसमें हम देखेंगे कि उनसे हम पैसे लेते हैं तो कितना पेमेंट उनको भी करना पड़ता है, तो वो नहीं लेना पड़ेगा। एक्सटर्नल सोर्सेज ये सब तीन जो हमने देखे, इक्विटी प्रेफरेंस है, दिस वन दैट इज द रिटेल प्रॉफिट, वो इंटरनल है। एक्सटर्नल में हम देखेंगे उस टाइम में डिस्कस करेंगे। सो किसी के पास से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। ओके दैट इज द सेकंड वन। थर्ड यस यूजफुल टू परचेज न्यू एसेट्स, दैट इज द नीड अराइज टू परचेज न्यू एसेट्स। अगर कोई एक एसेट से डिप्रिशिएशन लगेगा, तो डिप्रिशिएशन लगेगा आफ्टर 5 years 10 years उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, शायद आगे डेटेड भी हो जाएगा, तो उस टाइम पे पैसे नहीं होंगे, तो आप कैसे कुछ नया खरीदोगे, कैसे कुछ नई एसेट परचेज करोगे। सो एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ, आपको मालूम एस्टिमेटेड लाइफ क्या होती है, वो भी आएगा पार्ट 2 चैप्टर 1, सॉरी पार्ट 2 चैप्टर 2 डेप्रिशिएशन इन अकाउंटेंसी। वहाँ आप डिटेल में देखोगे कि डेप्रिशिएशन कैसे लगता है और नई एसेट कैसे परचेज की जाती है। सो सिंपल थिंग्स एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल 20 साल 25 साल दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कोई एसेट नहीं चलती है। फिर अगर चलती भी है तो वो आउटडेटेड हो जाती है। 25 साल में, 1 साल में सब कुछ टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो 25 साल तक कौन सी चलेगी? नाउ इज 5 years 5 or 10 नॉट मोर देन दैट, इनफ फॉर द एसेट्स। सो सिंपल एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स the retained profit can be used to purchase new assets। तो आपके पास अगर ये रिटेन अर्निंग्स का पैसा होगा तो यू कैन यूटिलाइज दैट इन द फ्यूचर टू परचेज द न्यू एसेट्स। मैंने तो आपको जो 20 रुपये का एग्जाम्पल दिया, 80 खर्च होगा 20 रखे, वो तो बहुत छोटा है। कंपनी का तो करोड़ों में प्रॉफिट होता है, हर साल जो प्रॉफिट होता है उसमें से 10% निकले तो करोड़ों रुपीज़ उसके असाइड हो जाएंगे। 5 साल के बाद देखो तो एक नया पूरा एक यूनिट खड़ा हो सकता है, उतने पैसे हो जाएंगे। सो दैट इज गुड थिंग, जनरल रिजर्व रखना चाहिए, दैट इज द पॉजिटिव साइड। सो दैट इज यूजफुल फॉर द न्यू एसेट्स परचेज ऑफ न्यू एसेट। फोर्थ वन फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी। सी सिंपल थिंग इज दैट preference shareholders are getting fixed rate of the interest, sorry fixed rate of the dividend, debentures holders are getting fixed rate of interest, उनको तो पैसा मिलने ही वाला है, राइट। तो एक ऐसी पॉलिसी क्यों ना बनाए इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, यानी दे विल गेट द फिक्स रेट टाइप ऑफ द डिविडेंड एवरी ईयर। तो हो सकता है अगर आपके पास पैसा हो तो। लेट्स सी व्हेन समटाइम्स कंपनी एडॉप्ट्स अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी देन रिटेन अर्निंग बिकम्स यूजफुल। अगर आपका प्रॉफिट कई साल में एवरेज से थोड़ा नीचे आया, उस टाइम में भी आपको डिविडेंड अच्छा देना है, आपकी इमेज, क्रेडिबिलिटी, आपकी रेपुटेशन, फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में कम नहीं होने देनी, तो रिटेन प्रॉफिट, ये जो पैसा है आप यूज़ कर सकते हो एवरी ईयर। सो एंड सो कंपनी, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग एग्जाम्पल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS इज गिविंग 20% डिविडेंड, दैट मीन्स 2 रुपीज़, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़, सो 20% दैट इज 2 रुपीज़। तो हर साल वो 2 रुपया डिविडेंड अपने शेयर पर देती है। मेरे पास खुद के पास 1000 शेयर है मान लो, तो मुझे हर महीने हर साल 2000 रुपये मिलेंगे एज अ पार्ट ऑफ द डिविडेंड। अच्छा तो करोड़ों लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, सबको पैसा मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर कंपनी का कुछ प्रॉब्लम हुआ और कंपनी ने शायद डिविडेंड जो 10% था घटा के 5% कर दिया, नाउ सॉरी 20% था हमारे हिसाब से 2 रुपये, घटा के 10% 1 रुपया कर दिया। तो इन्वेस्टर मे बी आफ्टर गेटिंग द डिविडेंड दे विल सेल द शेयर्स, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी कुछ ना कुछ रीज़न से साल डिविडेंड उन्होंने घटाया है, तो ऐसा नहीं करना है कंपनी को। दैट्स व्हाई दे कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर रिटेन अर्निंग और रिटेन प्रॉफिट फॉर इनकम प्रॉफिट। सो दैट इज फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी। बताना नहीं है आपको, अपने इन्वेस्टर्स को ये नहीं बताना है कि वी आर यूजिंग द रिटेन प्रॉफिट फॉर सो एंड सो,
आपको तो सिर्फ प्रॉफिट जो आया है उसके हिसाब से आपको डिविडेंड देना है। नेक्स्ट, बर्डन फ्री एसेट्स। ओके, ये थोड़ा टॉपिक अलग सा है, पहले आपको थियरी समझा देता हूँ। एज इट इज अ सोर्स ऑफ ओनरशिप कैपिटल, ये ओनरशिप कैपिटल कौन सा वाला, हमारा रिटेन है। देयर इज नो नीड टू क्रिएट बर्डन ऑन द एसेट्स। तो अगर आप इसका यूज करते हो तो एसेट्स पर बर्डन नहीं आएगा। कैसे? डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के दो टाइप होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। उस टाइम में हम देखेंगे सिक्योर्ड ऐसे डिबेंचर है जो आप इश्यू करोगे तो जिसका पैसा आपने लिया है उसको वापस तो करना है ना, बिकॉज इट इज फॉरन कैपिटल। तो जब पैसा वापस करना है, कंपनी इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर्स, दे कैन सेल दैट, दे हैव टू सेल दैट एसेट्स ऑन दैट द सिक्योरिटी इज देयर। आपने लोन लिया होगा, आपको मालूम होगा, लोन का मालूम होगा, अगर आप बाइक का लोन ले तो यू आर नॉट एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट, जो भी बैंक है आपका बाइक ले जाएगा एंड दे विल सेल दैट पर्टिकुलर बाइक एंड गेट द मनी। ये सब सिंपल थिंग है। तो ये सिक्योर है। हमारे घर पे लोन होती है तो उसके कागजात जो होते बैंक में होते हैं, जब तक हम इंस्टॉलमेंट नहीं भरते थे, जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक हमने बंद कर दिया तो बैंक हमें नोटिस 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 3 नोटिस लेके उसे बंद करके भेज देती। दैट इज द नॉर्मल थिंग इज दैट, जल्दी नहीं देती। लेकिन ये सब के हिसाब से आपको मालूम होता है कि आपका जो घर है, आपका जो बाइक है वो सिक्योर है बैंक के लिए। हमारे लिए तो सिक्योर है, बैंक के लिए सिक्योर है, बैंक कैन सेल दैट वन एंड गेट देयर मनी। लाइक दैट, अगर फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट है तो आपको अपनी एसेट्स के ऊपर कोई भी टाइप का सिक्योर या सिक्योरिटी नहीं लेनी होगी। दैट मीन्स इट इज टोटली बर्डन फ्री, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि आप आसानी से कोई भी नई चीज़ खरीद सकते हो, उसके लिए आपको कोई एसेट का बर्डन नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू गिव एनी टाइप ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ योर एसेट्स। सिंपल थिंग। तो आपकी एसेट भी सेफ रहेगी एंड आपका पैसा भी यूज होगा। सिंपल थिंग। डिबेंचर में इसको डिटेल में देखेंगे आप। नेक्स्ट वन, borrowed capital can be repaid. Whatever the borrowed amount is that in the sense of the debentures, public deposits और other financial institutions के पास से जो हमने लोन लिया है ट्रेड के हिसाब से, जो भी हम छोटे बहुत शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं वो सब हम पे कर सकते हैं borrowed capital। इसके बाद डिटेल में, so it is useful, this particular flowing back of profit is useful to repay borrowed capital। जो हमने पैसे किसी से लिए हुए उसको वापस करने के लिए ये पर्टिकुलर ओनर फंड जो रिटेन अर्निंग है बहुत यूजफुल है। सिंपल थिंग ना, पैसा बचता है आपके पास, करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए एक साल या 2 साल का जो भी प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से, तो पे द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, पे द अमाउंट ऑफ द लोन्स। सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया, हर रोज़ का आपको 100 रुपया मिलता है, 20 आपने इकट्ठे किए हुए, 5 साल खत्म हो गया, आपको बहुत पैसा हो गया, आपने किसी से लोन लिया हुआ है 2000 3000, छोटी अमाउंट इंडिविजुअल बात करें 5000 10,000 50,000, उसमें से दे दो थोड़ा बहुत। सिंपल थिंग, यू विल गेट द बेनिफिट। ये सिंपल एग्जाम्पल है। ओके, आगे है डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, COC। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे? ये चीज़ है कि व्हेन यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ द अदर थिंग्स, तो आपको बाहर से जो कैपिटल लाना पड़ता है, आपको जो भी कैपिटल क्रिएट करना है उसके पीछे बहुत सारे कॉस्ट लगेंगे। जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा तो आपका कैपिटल यूज होने का जो भी अमाउंट है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट से लोन लेते हो, पहले आपको 10% देने पड़ते हैं। 100 रुपीज़ का लोन लिया, 90 रुपीज़ आपके पास है, 10 रुपीज़ उन्होंने ले लिया, तो 10 रुपीज़ तो ऑलरेडी कम हो गए, राइट, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके ऊपर जो कॉस्ट लगा हुआ है, तो लेट्स सी कैसे, ड्यू टू हैविंग रिटेन प्रॉफिट द बिजनेस यूनिट हैज नॉट टू डिपेंड ऑन टू रेज द कैपिटल एक्सटर्नल सोर्सेज। तो अगर आपके पास पूरा अपना ही पैसा है, दैट इज अ रिटेन प्रॉफिट, राइट। सो व्हाई यू आर डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज, तो इफ यू हैव बिजनेस यूनिट हैज दैट टाइप ऑफ द प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट, देयर इज नो नीड टू डिपेंड ऑन द रेज कैपिटल और द एक्सटर्नल सोर्सेज। क्यों डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, क्यों पब्लिक डिपॉजिट इश्यू करते हो, क्यों लोन लेते हो, देयर इज नो नीड टू इश्यू और नो नीड टू टेक द बेनिफिट ऑफ द आउटसाइड ऑफ योर एक्सटर्नल सोर्सेज। और no expenditure, that is the cost of capital, no expenditure is there on the particular income in the gaining capital। पैसा लेने के लिए भी कुछ खर्च करना पड़ता है, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। सिंपल है, बाइक लेना है उसके लिए लोन लेनी है तो आपको फाइलिंग चार्ज देने पड़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम होगा वो पेमेंट करना पड़ेगा। बड़ी लोन बड़ा एक्सपेंडिचर, छोटी लोन छोटा एक्सपेंडिचर, दैट इज द सिंपल थिंग। तो वो जो पैसा है वो ज़्यादा लगेगा। सो सिंपल थिंग, देयर इज डिक्रीज और इट शुड डिक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पैसा अपना ही यूज़ करो, कोई भी पैसा एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देना।
लास्ट वन ओनर्स फंड, ये खुद का फंड है, अपना फंड है। सो इट इज एन flowing back of profit is an owner's fund, so there is no need to pay interest। ये बहुत अच्छी चीज़ है। डिबेंचर इश्यू करवाओगे, कैपिटल फंड के लिए पैसे लगेंगे, उसके फाइनेंशियल लगेंगे मैंने बोला, और मेन थिंग यू हैव टू पे द इंटरेस्ट डिबेंचर टू द डिबेंचर होल्डर्स। यहाँ ऐसा नहीं है, अपना पैसा यूज करो, देयर इज नो नीड टू पे द इंटरेस्ट। सो दैट्स द एंड ऑफ द एडवांटेजेस एंड मीनिंग रिलेटेड टू द फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और रिटेन प्रॉफिट। एक पॉइंट इसका अभी बाकी है, दैट इज लिमिटेशन, बहुत कम लिमिटेशन है, लेकिन हाँ एवरी कॉइन हैज टू साइड्स लाइक दैट। इसका भी एक एडवांटेज है लेकिन डिसएडवांटेज भी साथ में है। only 3 or 4 disadvantages are there. I will get information in next session, then after I will start to borrow fund, that is borrow capital. Thank you.